Hi everyone, it's Ruchika Nirvan with you. Welcome back to my channel at Learn and Play. And today we have Dr. Kriti with us. As you all know that it's going to be Autism Awareness Month, and we will be focusing on some awareness topics like executive functioning skills. And today we are going to talk about emotions with Dr. Kriti Vyas Shukla. So let's call Dr. Kriti. Hi, Dr. Kriti, how are you? Hi, Rishika. I'm fine. How are you? I am also good. So can you give us two lines about yourself? Okay, so hi everyone. I am Dr. Kriti Vyas, and I'm practicing child psychologist and special educator, and have been working into this area from a very long period of time, and worked in settings like school, NGOs, clinic, hospital setups. So yeah, and dealt with a number of kids with different kind of issues, concern, be it emotional, learning, or behavior. That is one part of my work area. Another area is research work, where we look into the field of child development, parenting, and developmental disabilities or rehabilitation, and research on various construct and like studying a particular phenomena and interviewing questionnaires. So few of my papers are also published. So yeah, that is Nice. one area. Yeah, thank you. Nice. So today we are going to talk about emotions, right? Yeah, that So is our next part in the series. Yeah. yeah. So as it's going to be Autism Awareness Month, and already we know that our kids find it so difficult to express emotions. So yeah, it's going to be good that we are discussing at this time, and Yeah. so we can start with PPT. Yeah, sure. I'll share my PPT. Give me a moment. I hope the screen is visible. Yeah, screen is. I'm trying slideshow. Let us see how it is. Today the system is giving me. It is not supporting me today. It happens at times. Yeah. So I'm trying slideshow. Let me just check. Is it slideshow or still? Yeah, it's now Now started. it's fine. Yeah. Yeah. So today we will be talking about emotional control, or we call it emotional regulation or self-regulation. These are various different terms, but meaning sabka ek hi hai. So let's start with first understanding what is this self-regulation? Yeah, what is this emotional regulation? So, like many times, I think you must have also experienced that पेरेंट आएंगे पूछेंगे क्वेश्चन कि हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्यों काम नहीं कर पा रहा है, या अपनी सिस्टर से या ब्रदर से लड़ता रहता है, लड़ती रहती है, होमवर्क टाइम पे नहीं करता है, झूठ बोलता है, उसको पता भी है हम जो झूठ बोल रहा है तो पनिशमेंट मिलेगी. सो बहुत से क्वेश्चंस पेरेंट्स के दिमाग में होते हैं, एंड दे फील कि मे बी हम लोग सही बाउंड्रीज या कुछ लिमिट सेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे के साथ, या जो भी हम इसके साथ इसको रूल ब्रेक करने का कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं वो सही नहीं है, या वो ये भी सोच रहे हैं कितना कुछ करें, कितनी बार तो हमने कर लिया. अगर हम इसके एक और इस इशू का एक और पहलू देखें तो वो इशू है सेल्फ रेगुलेशन का. सेल्फ रेगुलेशन या इमोशनल रेगुलेशन बेसिकली मीन कि बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस कर पा रहा है, इंस्टेड कि वो अपने इमोशंस को बहुत ही इम्पल्सिवली या अनहेल्दी वे में कम्युनिकेट करता है. So the skill is of emotional regulation is not like कि बच्चा पैदा हुआ है वो सीख के आया है. It is the child keep on learning on it, Right. and skill is very crucial for, if we see current research as well, काफी crucial है child के overall development के लिए. So and
मेजर इश्यूज क्या होते हैं, हम बाकी चीजों पे वर्क करते हो कि हम उसको कॉन्सिक्वेंस दे देंगे या लिमिट सेट कर देंगे, यस दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट मेजर एरिया अगर हम देखें तो बच्चा जो है अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। Right. अगर एग्जाम्पल है कि बच्चे वो कंटिन्यूसली फाइट करता है सिबलिंग के साथ, तो मे बी उसको अगर सिबलिंग ने कोई चीज उठाई है उसकी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा अच्छा ये मेरी चीज है तो उसने कैसे उठा ली। ये इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है उसके लिए, ना उसको समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अगर मैं और उसको इमीडिएटली दिखता है कि चलो मैं इसको वापस छीन लूं या मैं चिल्ला दूं, तो इसके और भी तरीके हैं जिसको मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ विदाउट उस अपने भाई बहन से लड़े हुए। तो उस चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सब डिफरेंट नेम्स हैं, बट ये एग्जैक्टली है क्या और ये किस तरह से हमारे बच्चे को इम्पैक्ट करते हैं, और हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज करें या अपनाएं जिसकी वजह से हम ये दिक्कत को या जो भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आ रही हैं उसको रिजॉल्व कर पाए। अगर सेल्फ रेगुलेशन को हम फर्दर ब्रेक करें, और जैसा कि हमारी सीरीज जो है जो हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में, बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि मैं अपने आप को जब भी मैं किसी सिचुएशन में हूँ, मैं अपना काम कंट्रोल मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो आई कैन कंट्रोल दैट इमोशन, मैं कामली डील कर सकता हूँ। जब ये चीज हो रही है साथ ही साथ मुझे अब अपना ऐसा नहीं है कि मैं इम्पल्सिवली जंप कर जाऊं कोई भी एक्शन करने के लिए, मुझे अपने टर्न के लिए भी वेट करना है, पॉज करना है, रिफ्लेक्ट करना है कि मेरा इम्पल्सिवली एक्ट करना है, मेरा अपनी सिस्टर को हिट करना, क्या ये सही एक्शन रहेगा या नहीं रहेगा। सो अटेंशन, फोकसिंग, कंट्रोलिंग आवर इम्पल्सेस and taking a decision ahead, constructive decision ahead, all these things जो है वो सेल्फ रेगुलेशन का पार्ट है जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज, अगर हम उसको और एक्सपैंड करें सेल्फ रेगुलेशन को, ये सब स्किल्स जो हैं वो इंक्लूड होती है जब इमोशनल कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। Right. अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जहाँ पे अगर हम देखेंगे एयरपोर्ट्स पे, वहाँ पे दिन भर में बहुत सी फ्लाइट्स टेक ऑफ होती है, लैंड होती है। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो एफिशिएंटली, सेफली और बहुत अच्छे से उन फ्लाइट्स का टेक ऑफ, लैंडिंग को कंट्रोल कर पाए। ओके, सो दिस इज द मेजर फंक्शन जो एक, अगर हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें। अब नाउ हम ये अगर सिचुएशन हम आप एक और सोचते हैं कि जो डायरेक्टर है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, वो अभी कुछ टर्मोइल से या कुछ ऐसे इमोशन से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसको मे बी गुस्सा आ रहा हो, या वो अपने किसी फैमिली मेंबर का लॉस हुआ है तो वो बहुत बिरीवमेंट वाले फेस में है, ग्रीफ, सैड है, अपसेट है, और या बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है, वरीड है, या बहुत उसको फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आ रहा है। तो अब आप सोचिए कि इस इमोशनल स्टेट में, इस डिसरेगुलेटेड स्टेट में क्या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जब बच्चे के अंदर इस तरह के इमोशंस होते हैं जहाँ पे वो बहुत ओवरवेल्म्ड होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो वो उसका इम्पैक्ट आपको उसके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है, या अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग, ऑडिटरी, विजुअल, इन सब पे पड़ेगा, क्योंकि वो इतना हाईली कॉग्निटिव टास्क को अटेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके इमोशंस जो हैं वो इतने डिसरेगुलेटेड हैं कि वो नहीं आपस में काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम ब्रेन का एक स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो ब्रेन में डिफरेंट एरियाज हैं। एक एरिया है जो हमारे इमोशंस को देखता है, जो हमारे क्या हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, उस एरिया को दिखता है। और एक एरिया है फ्रंटल लोब जहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग के काम होते हैं, कोई डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करना, ये सब चीजें जो हैं ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का पार्ट है जो कि हमारे फ्रंटल लोब में हो रही है, और ये दोनों डिफरेंट एरियाज है। बट जब हम ओवरचार्ज्ड है, हमारा बच्चा इमोशनली ओवरचार्ज्ड है, तो इन दोनों एरिया में कनेक्शंस नहीं बैठ पाता है।
और ये ओवर पावर्ड इमोशनल जो हम सिचुएशन में है वो हमें रोक देती है क्लियरली सोचने के लिए और एक डिसीजन लेने के लिए। इन द एंड क्या होता है, बच्चा बहुत इम्पल्सिवली एक्ट कर देता है। सो ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है, या अगर हम ब्रेन के किस तरह से इमोशंस एक ओवर पावरिंग इमोशंस आते हैं, किस तरह से हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, तो ये जानकारी उस चीज के बारे में है कि हाँ ये चीज हमारे ब्रेन में होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कुकअप कर रहा है, ये एक्चुअली में उसके साथ एट द ब्रेन लेवल, एट द फिजियोलॉजिकल लेवल ये चीज हो रही है। क्योंकि एक और चीज यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जो हम बच्चा देखते हैं, जैसा मैंने इनिशियली बोला कि इमोशनल रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट समथिंग कि वो ही इज बोर्न विद इट, नो। उसका ब्रेन जो है अभी कंस्ट्रक्टिव फेज में है, एंड इट इज नॉट लाइक कि हम लोग अभी इस तरह से बता रहे हैं, बट देयर आर रिसर्चेस, पेरेंट्स कैन रीड एंड रिसर्च अबाउट इट कि ब्रेन किस तरह से डेवलप होता है जब बच्चा एक छोटा बेबी होता है टिल वो एलिमेंट्री स्कूल में आता है और एडल्ट मतलब टीनेज क्रॉस करता है, कॉलेज के पीरियड में आता है। सो इस पूरे पीरियड में ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग। ओके, सो जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस एनालॉजी जो है हमने रिसर्च ने एक हाउस से ली है। सो हियर अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो ब्रेन को हमने एक घर की तरह बताया है, जिसमें डाउनस्टेयर पार्ट जो है, नीचे का जैसे एंट्री लेते हैं जहाँ पे आपको किचन, बेसिक फंक्शंस जो होंगे, किचन, लिविंग रूम, बाथरूम, तो ये रिसर्च कहती है कि जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हैं लाइक ब्रीदिंग, रिएक्शन टू, हमारा इमीडिएटली कोई भी चीज हमें चुभती है तो इमीडिएट रिएक्शन कि हम उस चीज से हटा दें, हमारे रिफ्लेक्सेस या फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, ऑल दीज आर जो ये बेसिक फंक्शंस हैं ये ऑलरेडी जब बच्चा पैदा होता है उसके पास होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो डाउनस्टेयर वाला ब्रेन है वो ऑलरेडी है, बट जो अपस्टेयर साइड ऑफ द ब्रेन है वो अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो आपका 2 साल का जो बच्चा है वो इमीडिएटली एकदम से उसको हल्का सा स्क्रैच लगा तो वो रोने लग गया, या उसको उसकी फेवरेट प्लेट नहीं मिली तो वो रोने लग गया, क्यों? बिकॉज अभी वो अभी उसका सिर्फ जो डाउनस्टेयर वाला ब्रेन है, जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वहां से वर्क कर रहा है वो। Right. अभी उसका जो अपस्टेयर पार्ट ऑफ ब्रेन है, या जो कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व है, जहाँ पे उसको सोचना है, समझना है, डिसीजन लेना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, वो चीज अभी डेवलप हो रही है। और ये चीज मे बी एलिमेंट्री स्कूल में जाएगा तो वो धीरे धीरे उसको वो फोकस करना सीखेगा, मे बी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना सीखेगा कि नहीं ये दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर, दिस इज नॉट अ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, या मुझे अपने क्लासरूम में मुझे पीयर्स के साथ कैसे बैठना है। तो ये स्टेजेस वाइज जो है बच्चा लर्न करता है। टॉडलर है तो धीरे धीरे चीजें सीखेगा, बट इमीडिएटली वो चीज डेवलप नहीं हो पाएगी कि ओके नाउ मुझे इमोशन कंट्रोल करना है। नो, इट टेक्स टाइम, एंड इवन रिसर्च सेज दैट इवन मिड-20s तक ये जो हमारा जो अपर स्टेयर ब्रेन है, यानी जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो इन सब थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है, वो स्टिल डेवलप कर रहा है। इसलिए हम टीन्स में भी देखेंगे उनका जो ब्रेन है मोर इमोशनली चार्ज्ड अप होता है, यानी कि जहाँ पे जो एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा थ्रिल, रश इन्वॉल्व है, वो उन एक्टिविटीज में ज्यादा जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ब्रेन इमोशनली रिएक्टिव है। जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ब्रेन है, जिसमें मैं समझ पाऊं कि हाँ ये नहीं, मुझे अब ब्रेक लगाना है या मुझे रुकना है, इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना, वो स्टिल डेवलपिंग। ओके, सो जब एक डिसरेगुलेशन की सिचुएशन आती है, जब मैं इमोशनली चार्ज्ड अप हो जाता हूँ, तो ये जो कनेक्शन है, जो हम ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ये बेसिकली ये बता रही हैं कि जब मैं एक इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन में होता हूँ, तो ये मेरा जो ब्रेन है, ये जो इमोशंस हैं, ये सिग्नल करते हैं मेरे अपर एरिया ऑफ द ब्रेन को। सो यानी कि ये स्टेयर्स बेसिकली सेंडिंग कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अब एक तो ऑलरेडी मेरा अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्टिल मैच्योरिंग, स्टिल डेवलप हो रहा है, प्लस इमोशनली चार्ज्ड हूं मैं, तो मेरा कनेक्शन भी जो है वो लूज हो जाता है। सो मे बी ऐसा भी हो सकता है
की सही इंफॉर्मेशन, बिकॉज हम इमोशनली इतने चार्ज्ड है कि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे रैशनल पार्ट ऑफ ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए हम इमीडिएटली इम्पल्सिवली रिएक्ट कर पाए। हम बच्चा इमीडिएटली कुछ ऐसा काम कर दे जो आपको लगेगा कि अरे इसने तो सोचना चाहिए था, क्यों एकदम से इसने अपने मे बी पीयर को हिट कर दिया। क्लास में यूजुअली हम देखते हैं कि उसने मेरी पेंसिल ली तो बच्चा उठा और उसने इमीडिएटली उसको जाके उससे पेंसिल छीन ली। या आप एक और सिचुएशन देखेंगे कि बच्चे खड़े हुए हैं या बैठे हैं क्लासरूम सिचुएशन में, पीछे से एक बच्चा आया, यहाँ एक ऑलरेडी बच्चा बैठा हो, उसको थोड़ा धक्का लग गया। अब इमीडिएटली धक्का लगा तो मेरा इमोशनल ब्रेन कहता है कि इसने मुझे जानबूझ के हिट किया है, वो मेरे से कुछ ही प्लेइंग अगेंस्ट मी काइंड ऑफ। सो अब मेरा रैशनल ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाए, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा एकदम से मुझे गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। तो रैशनल ब्रेन हमें क्या हो सकता है, अगर हो सकता है उसे गलती से लग गया, right? So here I want to add one thing, like when emotions are impacted, like the entire the forebrain part is impacted, so processing and also perspective taking, I feel this is also impacted. So when you said the brain is under construction, so parents should also understand that yes, brain is under construction, but we will still put some kind of a, through activity based things, so that the child brain will support and to get, and it will form like a mature brain. So even though brain is developing on its own pace, when I'm talking about kids with autism and other special needs, so we still give them a lot of perspective understanding, basic emotions understanding through visuals and with the help of some other things, right? So we also strengthen their perspective, so they should be prepared for these things. So I think combination of both will work, right? Yes. So why we are like emphasizing on understanding this physiology या एक biological component को, because अगर parent इस component को ध्यान में रखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि बच्चा ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, इसका developmental stage इस तरह से है, and then because like you said that it is important, it's not like कि हमने अच्छा उसका brain तो इसी तरह से work कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, it's not like that, because ये जो development भी है वो depend करता है कि आप कितना स्टिमुलेशन दे रहे हो, कितनी एक्टिविटीज आप उसको समझा रहे हो, किस तरह से आप उसको गाइड कर रहे हो, कोच कर रहे हो, बिकॉज एट दिस स्टेज why we are doing this session, we are doing this session to educate the parents कि this is the reality, this is the cause for the problem, now it's your job to understand the child कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ reasons हैं, but if we guide them, we coach them, we give them strategies to work, like you said, perspective taking. So even if we see in the picture empathy is basically perspective taking, वो इतनी जल्दी नहीं आती है, तभी immediately आप देखोगे बहुत जल्दी fight हो जाती है, but when we do some training on perspective taking, but when we engage in some empathy building exercises with kids, definitely वो समझेंगे, बट वो कोचिंग की, वो रीइंफोर्समेंट की एज अ पेरेंट को करना पड़ेगा वो चीज, राइट। सो इसलिए ये चीजें एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट एक चीज हम लोग ने बहुत देखा है कि एक डिफरेंस, मतलब यूजुअली देखेंगे कि टेंट्रम्स, मतलब बच्चे जो है टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, या हमने एक टर्म कभी सुनी होगी, स्पेशली जब हम ऑटिज्म के एरिया में बात करते हैं, मेल्टडाउन्स। सो चीज है कि टेंट्रम्स और मेल्टडाउन सेम है या इसमें कोई डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज है। सो अब हम वो जानेंगे कि टेंट्रम्स और मेल्टडाउन्स होते क्या है, इसमें क्या डिस्टिंक्शन है, क्या सिमिलैरिटी है। सो इफ वी सी दिस इज लाइक अ वेन डायग्राम, जहाँ पे हम दो सर्कल को हमने मिलाया हुआ है। तो एक तरफ हम देखेंगे टेंट्रम्स जो है, जो समथिंग कंट्रोल है, बच्चा जो है उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है। लेट्स से रेड प्लेट वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ही वांटेड अ ब्लू प्लेट, बट ब्लू प्लेट नहीं थी मार्केट में, तो रेड प्लेट चाहिए थी, बट उसने बोला मुझे तो चाहिए नहीं, और ही थ्रू द प्लेट अवे
और वहीं पे रोने लग गया या लेट गया जमीन पे, स्क्रीम करने लग गया. सो दैट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय द चाइल्ड. ही इज डूइंग इट in because of the overwhelming emotion. But meltdowns are dysregulated. It's not in the child's control. Some, because as we know that autism में अलग अलग तरीके की सेंसरी नीड्स होती हैं. कुछ बच्चों को अगर लाउड साउंड्स हैं उनको उनसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है. कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको कि लाउड चाहे कितना भी शोर हो उससे कोई उनको डिफरेंस नहीं महसूस होता. या इवन इन टर्म्स ऑफ टच. So some like they have sensory need in terms of touch, like हल्का सा कुछ टच हो गया, या इवन हम देखेंगे जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें पीछे टैग लगा होता है. So those things also irritate children जिनको touch से sensitivity होती है. But some are very happy go lucky, they are not bothered about that. Some children will be like they enjoy that movement and they will be swinging around, they will be hopping around. So kids की अलग अलग sensory need होती है. So जब ये sensory need overload हो जाती है, like over stimulation हो जाता है, so हम उसको meltdowns कहते हैं. बट जब टेम्पर टेंट्रम की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जब चाइल्ड का कुछ चाहता है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज हो जाता है, एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड येलिंग अराउंड. बट अगर हम देखें इन दोनों में कॉमनैलिटीज क्या है, यस इट इज मिसअंडरस्टूड. बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है बच्चे के लिए मेल्टडाउन भी और टेंट्रम भी, बिकॉज उसकी एनर्जी जा रही है, वो स्क्रीम कर रहा है, रो रहा है. और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अगर हम देखें लैक ऑफ स्किल्स मीन्स बिकॉज बच्चे के अंदर राइट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज नहीं है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या करना है. ओके, एंड प्लस इट इज ऑल्सो सिग्नलिंग अ नीड. इट इज शोइंग कि इस बच्चे को किसी चीज की नीड है. दैट्स व्हाई ही इज कम्युनिकेटिंग, बिकॉज ही इज अ स्मॉल किड. सो ही डजंट नो कि मुझे अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, या अगर मुझे कुछ जरूरत है तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ. बिकॉज वो एक्सप्रेशन का इशू हम ऑटिज्म में भी देखते हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू दैट सोशल कम्युनिकेशन एरिया, और इज ऑल्सो we can see some deficits there. So automatically they don't know. So these meltdowns can be a reaction or a way of communication to the caregiver कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और बच्चा वो सिग्नल कर रहा है. ओके, सो ऑन दी फ्रंट वो लगेगा कि हाँ बच्चा गुस्सा है, रो रहा है, येल कर रहा है, किक कर रहा है. It's like he's just trying to manipulate. No, he's not trying to manipulate. There is some valid reason for that. Okay, so अगर उस हिसाब से देखें, अगर हम फर्स्ट और डिटेल में जाएं टेम्पर टेंट्रम्स की, कि वो डेवलपमेंटल एज में लाइक टेरिफिक टूज अगर हम कहें, या टॉडलरहुड में देखें, तो उस एज में ये आपको काफी कॉमन दिखाई देगा, जिसमें कुछ ना कुछ पर्पस है कि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा मुझे ब्लू कलर का एरोप्लेन लाके नहीं देंगे, तो लेट मी स्टार्ट. और मैंने उनको बोला मुझे ये चाहिए, पेरेंट ने बोला नहीं अभी नहीं, आपके पास बहुत टॉयज है. अब नाउ आई वांट दैट टॉय. सो बच्चा क्या करता है, अपने उसको जैसे ही आपने बोला नहीं चाहिए, ही फेल्ट हर्टफुल, या उसको गुस्सा आता है. गुस्सा कंट्रोल करना तो आता नहीं है, या सही तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता. ही स्टार्टेड क्राइंग. वहीं मार्केट में हम देखेंगे बच्चे लेट जाते हैं जमीन पे, चिल्लाने लग जाते हैं. सो बेसिकली इट हैज पर्पस, बट इमीडिएटली जब आप उसको जो वो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है उसको आप दोगे, वो चीज स्टॉप हो जाएगी. बट ये चीज आप मेल्टडाउन में नहीं देखोगे. मेल्टडाउन जब होता है, जब सेंसरी ओवरलोड हो रहा होता है बच्चे के साथ, सो मे बी एट दैट पर्टिकुलर टाइम कुछ उस तरह की चीजें, अगर आप उसको डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब आपको लगा कि मे बी उसको कार चाहिए इसलिए मैंने वो नहीं दिया, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट करे. नो, टेंट्रम्स और मेल्टडाउन में एक मेजर डिफरेंस यही है कि इट विल स्टॉप व्हेन द डिजायर्ड थिंग इज प्रोवाइडेड. ओके, एंड चिल्ड्रन का यहाँ कंट्रोल कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा. बट जब हम मेल्टडाउन्स की बात कर रहे हैं, जब ऑटिज्म या सेंसरी ओवरलोड या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, वहां पे वो चीज कंट्रोल में नहीं है उनके लिए. सो अगर जैसे मैंने बात करी कि मेल्टडाउन इज लाइक इट कैन ट्रिगर्ड विद सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, या रूटीन में कोई चेंज आया, या सर्टेन साउंड्स या स्मेल जो उनको इरिटेट करती हो, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए उनके लिए, तो उसे हम सेंसरी ओवरलोड कहते हैं. अगर इसका एक और एग्जांपल देखें कि लेट्स से यू आर ड्राइविंग,
पेरेंट जो है वो ड्राइव कर रहा है आराम से, बहुत अच्छा है, एंड ही इज ट्राइंग टू रीच टू दी जो भी डेस्टिनेशन है वहां पे उसको कुछ काम है. So when he is trying to reach there, वो अच्छे से the weather is very nice, music is also playing, smooth road है, आपको आप अच्छे से move कर पा रहे हो. Now suddenly आगे कहीं कुछ रोड में कंस्ट्रक्शन हो गया है, इसकी वजह से ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो गया है. अब सडनली जो अब आपको इतने टाइम से आप बैठे हुए, दिस बहुत क्यू, बहुत लंबा ट्रैफिक है, यू कैन सी हिल ही नहीं रहा ट्रैफिक, गाड़ी बस रुकी की रुकी हुई है, ऊपर से गर्मी भी हो रही है. नाउ जो वही जो म्यूजिक जो था आपकी कार में जो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, सडनली वो आपको इतना इरिटेट करने लग जाएगा. इधर से गर्मी, सन बहुत हीट दे रहा है, साइड से कार्स जो है दे आर हॉकिंग, दे आर लॉट ऑफ नॉइज अराउंड. सो ऑल दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली जो आपका एक अच्छा मूड स्टेट था, वो आपका मूड स्टेट एकदम लो हो जाता है, आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हो. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वही म्यूजिक जो है उसको ऑफ करोगे, या अपनी आपका मन करेगा कि मैं बस यहाँ से चला जाऊं इस शोर शराबे से, इतनी हीट और उससे. सो वही चीज मेल्ट डाउन में भी है, अगर हम उससे रिलेट करें कि वो चीज बच्चे के लिए इतना ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है कि अल्टीमेटली उसकी जो ब्रेन है वो डिटेक्ट करता है कि मैं इसको आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए थ्रेट है. अब वो थ्रेट जब आता है तो देन वो हम रिएक्शंस देखते हैं कि वो रोएगा, या मे बी उनके जो आप हैंड फ्लैपिंग है या बॉडी रॉकिंग काइंड ऑफ बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. सो बेसिकली इट्स एन एग्जाम्पल टू एजुकेट पेरेंट्स कि यस, जिस तरह से ट्रैफिक की सिचुएशन को आप देखोगे और आपका ब्रेन जिस तरह से रिएक्ट करता है इस सिचुएशन में, सेम अगर हम उसको इस एनालॉजी को समझे कि एक बच्चे के साथ एक जो जिसको सम सेंसरी इश्यूज है उसके साथ क्या हो रहा है, तब हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मेल्टडाउन क्या हो रहा होता है. Right. So here are some of the example जो हमें better समझ पाएंगे. Like सारा है, she want a toy from the shop but her mummy is busy grocery shopping में. तो सारा बहुत रोने लग जाती है, but then मम्मी क्या करती है, ठीक है जाती है, वो toy देती है और सारा happy. So it's an example of tantrum because हमने यहाँ पे behavior जो है, जब उसको कोई desired चीज मिली वो behavior stop हो गया. बट अगर हम मेल्टडाउन का एग्जाम्पल देखते हैं, जैक इज अटेंडिंग अ म्यूजिक क्लास एंड सडनली ही स्टार्टेड प्रेसिंग हिज ईयर्स. हम ये कॉमन एक बिहेवियर देखेंगे जब हम चिल्ड्रन विद ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, विद बोथ हैंड्स. एंड जब टीचर जो है जब वो इंक्वायर करती है कि क्या हुआ, तो ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही इज नॉट ऑलरेडी, उसके लिए वो सेंसरी ओवरलोड है, ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस दैट. ठीक है. तो जैक की टीचर ने क्या किया, ही टुक हिम आउट ऑफ द म्यूजिक रूम, प्लेस्ड हिम इन द फेवरेट कॉर्नर. जैक वाज स्टिल उसके अंदर आप एजिटेशन या इरिटेशन देखोगे, बट ही टुक हिज ओन टाइम टू काम डाउन. दो आपने उस म्यूजिक ओवर स्टिमुलेशन वाले एरिया से आपने उसको हटाकर एक काम क्वाइट प्लेस में रखा, स्टिल आपको वो एजिटेशन वो दिखाई देगा. ही विल टेक हिज ओन टाइम टू मूव फॉरवर्ड. उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मेल्टडाउन का देखते हैं, रायन इज यूज्ड टू हिज नॉर्मल डेली रूटीन ऑफ इवनिंग प्ले टाइम विद हिज बॉल. टुडे उसका जो है बॉल जो है प्ले बॉक्स में से नहीं मिल रहा है उसको, कि कहाँ चला गया. रायन ने बहुत सर्च किया बॉल को, बट वो नहीं मिल पा रहा उसको, एंड ही इज वेरी अपसेट अबाउट इट. थ्रू आउट द इवनिंग, पूरा जो शाम का समय था वो पूरा क्रैंकी रहा क्योंकि उसकी फेवरेट बॉल नहीं मिली. एंड इवन एट द नाइट टाइम, जब सोने का समय हो गया, तब भी मदर को बहुत मुश्किल हुआ उसको पैसिफाई करने के लिए. सो अगेन मेल्टडाउन का एग्जाम्पल है, अगेन बिकॉज हम देखेंगे कुछ ऐसे बिहेवियर भी हमें ऑटिज्म में दिखाई देते हैं जहाँ पे they are like peculiar about certain things, and जो चीज उनकी फेवरेट है या चीज उनको बहुत अच्छी लगती है, they want that thing only. वो peculiarity, वो peculiar behavior है. सो अगर यहाँ पे वो छोटी सी बॉल की बात थी, मे बी अगर ये होता कि वो मदर्स को चाहे उसको डिस्ट्रैक्ट करती, अगर वो टैंट्रम होता कि उसकी बॉल नहीं मिल रही है, वो जस्ट जनरल अपसेट होता, तो मे बी उसकी मदर उसको डिस्ट्रैक्ट करती या दूसरी बॉल देती तो उसका बिहेवियर स्टॉप हो जाता. बट यहाँ वाई वी आर सेइंग मेल्ट डाउन, बिकॉज इवन आफ्टर उसने सर्च किया, मदर ने उसको पैसिफाई किया, रात तक वो कंटिन्यू रहा.
इवन रात में भी उसको बहुत डिफिकल्टी हुई सोने में, मदर को उसको सुलाने में। लास्ट एग्जाम्पल टेंट्रम का है अगेन, इट्स जीनास बर्थडे पार्टी। बहुत एक्साइटेड है बच्ची वो, और उसके घर में ढेर सारे बच्चे आए हैं, उसके पेरेंट्स भी बहुत एक्साइटेड हैं, सब लोग गेम खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जीना जो है कोई भी गेम नहीं जीत पाती है। वाइल तो पेरेंट्स जो होते हैं, अब पार्टी वाइंड अप हो गई है और पेरेंट्स जो है जीना उनको बोलते चलो चलो यू कैन गिव गिफ्ट्स टू योर फ्रेंड्स नाउ। सो उसी टाइम पे जीना जो है शी स्टार्टेड हाउलिंग, क्राइंग, येलिंग, मुझे नहीं देना गिफ्ट किसी को। सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ टैंट्रम। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें, जीना को अटेंशन चाहिए था। अब क्या है, पार्टी में बच्चे आए, जीना कोई गेम नहीं खेल पाई, मतलब अगर गेम खेला तो वो जीत नहीं पाई, उसको कोई अटेंशन नहीं मिली, क्योंकि सब अटेंशन थी जो बच्चे ने जीता उसको मिल गया। So again, that because of not getting attention, because she couldn't take up that loss of not winning that game, so वो एक टेंट्रम मतलब शो करती है कि वो शी स्टार्टेड येलिंग एंड शी सेड नो, मैं तो नहीं दूंगी गिफ्ट। सो इट्स एग्जांपल ऑफ टेंट्रम। सो आई होप अब हमें एक क्लैरिटी आई होगी कि एक टेंट्रम क्या है और एक मेल्टडाउन क्या है। सो कुछ हम स्ट्रैटेजीज अब देखेंगे कि अगर टेम्पर टेंट्रम है तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर मेल्टडाउन है तो क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, टेम्पर टेंट्रम है तो या यू हैव टू एस्टैब्लिश एक क्लियर एक्सपेक्टेशन, एक गाइडलाइंस, आपको बच्चे के साथ एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि दिस इज इवन अगर आप मार्केट भी जा रहे हो और आपको पता है कि वहाँ टॉयज दिखेगा तो ये चिल्लाना शुरू करेगा, तो ये सब चीजें आपको पहले से डिस्कस करनी है, एक्सपेक्टेशन क्लियर करनी है कि आपको हमेशा से, अब आपको हमेशा टॉय नहीं मिलेगा, मम्मा आपको सिर्फ एक टॉय दिलाएंगी और हम वो लेंगे और वापस आ जाएंगे। सो वो एक्सपेक्टेशन, वो बाउंड्री आपको डिफाइन करनी है। और जब भी आपको इस तरह से चीजें हो तो आपको अपने आप का काम बहुत मेंटेन करना है, फिगर आउट करना है कि क्या है ऐसा जो इसको प्रॉब्लम, इसके लिए प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और ये हर्ट क्यों है। अब वो हर्ट क्यों है, उसके बाद उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना कि यस आई अंडरस्टैंड यू वांटेड अ रेड प्लेन बट यहाँ मार्केट में ब्लू प्लेन है, तो मे बी हम नेक्स्ट टाइम मार्केट में आ सकते हैं, बट आपको एक्नॉलेज करना है कि मे बी रेड उसका फेवरेट कलर है, उसकी फेवरेट कलर की चीज नहीं मिली तो इसलिए वो गुस्सा है या वो सैड है इसलिए वो रो रहा है। सो वो चीज भी आपको आपको एज अ पेरेंट उस टाइम पे आपको इंटेलिजेंटली एक्ट आउट करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, क्योंकि कभी कभी हमें चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स चिल्ड्रन डू थ्रो टैंट्रम बिकॉज ऑफ अटेंशन, इनको अटेंशन नहीं मिल रही है, और अगर हम ये भी देखें कि हम उनको इग्नोर करेंगे वो कुछ टाइम के बाद जो है वो बिहेवियर स्टॉप हो जाता है। सो ignorance is also one of the strategy, but again it will depend upon कि वो situation क्या है, cause of behavior क्या है, क्यों हो रहा है, उसके बेसिस पे पेरेंट को देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह इसको, मुझे इग्नोर करना है, मुझे एक्नॉलेज करना है बच्चे की फीलिंग को, मुझे उसको सिखाना है कि इस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एक क्लियर कम्युनिकेशन का बहुत रोल है टेम्पर टेंट्रम में। लाइक अगर आपको एक फॉर्मली उसको कामली उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज नहीं मिल सकती है, क्योंकि रीजन देना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि नहीं मिल सकती तो नहीं मिल सकती, मैंने बोल दिया ना नहीं मिलेगा। आप जब इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे बच्चे को तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में नहीं आएगा, वो और इरिटेटेड एजिटेटेड हो जाएगा। इंस्टेड अगर हम रीजन देंगे कामली विदाउट हमारी वॉइस रेज करके, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो बच्चा समझेगा। या ये चीज कम्युनिकेट करना कि आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट मोर स्नैक बट यू कैन हैव इट आफ्टर डिनर। सो बिकॉज कभी कभी ये होता है कि चिप्स बच्चे ने खा लिए और वो डिनर नहीं कर रहा, आपने चिप्स लिया फिर उसका रोना शुरू। सो वहां पे अगेन एक अगर हम क्लियर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे तभी हम उस चीज को स्टॉप कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। या व्हेन यू आर डन स्क्रीमिंग एंड कैन टॉक कामली, या उसको बोल लें कि ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगी समझूंगी पर पहले आप रोना बंद करो। जब आप रोना बंद करोगे मैं आपसे बात करूंगी, समझूंगी क्या आपको चाहिए, आपको फ्रूट खाना है या आपको चॉकलेट खानी है, क्या चाहिए। तो उस ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं पेरेंट के लिए जो पेरेंट यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द कॉन्टेक्स्ट, कि
एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अब हम अगर बात करें मेल्टडाउन्स की, कि हाँ अगर मेरे बच्चे के साथ सेंसरी ओवरलोड की इशू है, कि उसकी कुछ सेंसरी नीड्स हैं, एंड कहीं कभी जब सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है या डिस्टर्बिंग हो जाती है, तो कुछ ना कुछ कभी कभी हमें वार्निंग साइंस मिलते हैं, लाइक दे वोंट बी एबल टू गिव यू राइट आंसर। लाइक हमने वो केस में देखा एक एग्जाम्पल में, जिसमें बच्चे ने बिकॉज ऑफ द म्यूजिक क्लास उसने अपने कान पे हाथ रख लिया, and the teacher started asking कि क्या हुआ, so he couldn't give any answer at that particular time and he started crying. So somewhere this is giving you a signal कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ issue या he has some need here which we need to address it. ओके, सो मे बी ही इज आस्किंग अगेन एंड अगेन क्वेश्चन, आप जो डायरेक्शन दे रहे हो वो फॉलो नहीं कर रहा है, अपने आप को लाइक अगर बहुत ज्यादा लाइट है, फ्लोरोसेंट लाइट है, अपने आप को अपनी आईज शट कर रहा है, ईयर्स क्लोज कर रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, फिजिट हो रहा है, या कुछ कंप्लेनिंग कर रहा है. सो दीज आर सर्टन साइंस कि यस देयर आर सर्टन नीड एंड आई नीड टू एड्रेस इट. सो एज अ पेरेंट आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या इसका प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में. सो स्ट्रैटेजी वो होगी, फर्स्ट थिंग लाइक आई सेड, यू नीड टू नोटिस द वार्निंग साइन कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये चीजें एक्सकेलेट हो रही हैं. इमीडिएटली ये होगा कि आप उसको एक काम क्वाइट प्लेस में लेके जाइए जहाँ पे उसका ओवर स्टिमुलेशन कम हो जाए. Like in that example, teacher took him to a quiet corner, maybe like जो एक preferred corner था उसका, वहाँ पे teacher उसको लेके गई. So and also उस टाइम पे जितने sometimes ये भी होता है जब इस तरह का behavior होता है तो 100 और घर में और भी लोग हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, अरे मैं बुक मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेती हूँ. So इस तरह का भी अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे का certain issues हैं, so मैं भी उसको जितनी audience कम होगी उतना अच्छा रहेगा. तो अपने आप को काम करना, काम प्लेस पे लेके जाना, एंड प्लस ये नहीं है आप उस टाइम पे उसको लेक्चर देना, या जितना वर्बली उसको लिमिट करोगे अपनी लैंग्वेज को, उतना उसको टाइम मिलेगा अपने आप को, उसकी बॉडी को, उसके ब्रेन को धीरे धीरे काम होने के लिए. समटाइम्स हम जो अकॉर्डिंग टू द सेंसरी नीड, हम जैसे जो बच्चा ओटी में अगर थेरेपिस्ट भी हैं, वो गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि समटाइम्स डीप प्रेशर्स देने से भी वो चीज जो है काम डाउन होती है. सो लाइक इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन देयर वाज अ चाइल्ड विद सिवियर इशू विद ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. सो व्हेनेवर ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड सो उसको बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा साउंड्स जब आसपास होते थे, बहुत ज्यादा लोग होते थे, तो ही यूज्ड टू हैव हिज डिफिकल्टी. So at that time we used have different हमारे पास अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के फाइबर होते थे, या टेक्सचर का एक हमने अलग अलग बना रखा था. सो अगर हम उसके हैंड पे उस टेक्सचर से रब करते थे जेंटली, सो उसको वो कहीं ना कहीं वो काम फील करता था. सो उसी तरह से स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, दे हैव डिफरेंट सेंसरी नीड. और अगर इस तरह से हम डिपेंडिंग अपॉन द सेंसरी नीड वी कैन प्रोवाइड देम डिफरेंट लाइक सन ग्लासेस है जहाँ पे लाइट सेंसिटिविटी है, तो आप उनको सन ग्लासेस दे सकते हो ताकि वो ओवर जो एक लाइट से जो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे से, उससे प्रोटेक्ट हो सके. लाइक इन द पिक्चर वी कैन सी अ वेटेड लैप पैड. So it's like a deep pressure वो provide कर, it's in a form of toy but some material is placed inside. Even आप घर में भी उस चीज से कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं जिससे उसमें वेट प्रोड्यूस हो जाए, और वो वेट जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है. सो सम चिल्ड्रन आल्सो गेट रिलीफ फ्रॉम दैट एज वेल. या नॉइज से, एक्सेसिव नॉइज से प्रॉब्लम है, सो वी आल्सो हैव नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स एज वेल, जो कि आजकल अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके एक्सेसिव नॉइज को एंड बच्चे को थोड़ा काम करने में हेल्प करता है. Yeah, sometimes children do have those preference for a chewy and crunchy snack. So at those things also make them like help them in calming them down. So again, depending upon the need of the child, parent can figure out okay या अपने therapist से interact करके कि कौन सी ऐसी चीज होंगी जो उसके लिए soothing होगी, वो चीज provide कर सकता है ताकि वो बच्चा जो है थोड़ा calm down हो सके. So these are the certain things
which parent can use specifically at this like during a situation of a meltdown. Next is there also are certain activities like in the beginning we discussed that it's a parent job to give provides or teach the child certain skills to regulate the emotion, क्योंकि वो सीख के नहीं आया है, उसको सिखाना पड़ेगा. एंड जितना हम उसके साथ प्लेवे मेथड से जितना इंटरेक्ट करके इंस्टेड ऑफ टीचिंग या प्रीचिंग करके बेटर रहेगा, हम जितनी प्लेवे वे से चीजें समझाए बच्चा उतना चीजें समझ पाएगा. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हमें उनको एक इमोशनल वोकैबुलरी देनी है. आप यूजुअली सुनोगे बच्चों से बात करोगे, हाउ आर यू फीलिंग गुड, हाउ आर यू फीलिंग बैड. सो उनकी वोकैबुलरी में वो गुड और वो बैड वो ही दो हैं, बट दे वी हैव टू टेल give them, teach them, okay, there are different kinds of feelings, Emotions. angry, Yeah. happy, sad, depressed and motivated. So all these vocabulary देने से उनको एक clarity आती है कि Yeah. मैं exactly क्या feel कर रहा हूँ. And nowadays so we have those emojis, stick-ons वगैरह, so you can play n number of games out of it. Like हम लोग मैं जो like going by my own experience, so we used to take out these emotions, जो ये emojis हैं, emojis का cut out निकाल के, and then sometimes I like if I emoji I मेरे पास आया emoticon आया, let's say upset. So upset का emoticon आया, now I have to express I am being upset through my actions. तो दमशराज के फॉर्म में जो भी कार्ड आया है मैं उस वे से अपने इमोशन को एक्सप्रेस करूंगी. या एक स्टोरी बिल्डिंग गेम भी होता है जिसमें let's say we will start a story on a happy note, then मेरा next emoji कार्ड आया shocked, Yeah. then the बच्चा वो ऐड करेगा कि ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से शॉक वो फील किया है. So instead of story they can also narrate experiences कि कब he felt motivated, कब he felt surprised. And it's not like सिर्फ खाली बच्चा बोल रहा है, you as a parent also need to tell them okay कब मैं बोर फील करता हूँ, कब मैं anxious फील करता हूँ. So जब इस तरह से एक interaction या इस तरह से एक माहौल बनाते हैं जिसमें we are freely discussing about what are various feelings, what are those emotions, then वो बच्चा भी उस चीज को समझ पाता है, वो vocabulary उसके अंदर डेवलप्ड होती है. जब वो Right. vocabulary डेवलप होगी, now he will be better able to recognize those emotions. Because Right. I want to add something here. Like parents, when they see this feeling and emotions chart, so you know, parents should not be in hurry that the kids should understand all the emotions in one go. So it's better if they can you know group it: low emotions, high emotions, neutral emotion, like that. So the kids also they can you know label that high emotions like motivated, happy, excited. So in that manner also they can learn it, and they can always start with the basic emotions, because yes, kids they know white and black, right? They know only happy and sad. happy, sad, good, bad. Yeah, basically taking the target becomes very important. Yes. So like I think in a previous session also we discussed कि कितना important है simple से complex की Yeah, तरफ simple to जाना. complex पे जाना, right? So similarly here also start with the simple feelings and then move to more complex feelings. So happy में भी देखेंगे, happy is a huge umbrella. तो उसमें भी बहुत से emotional terms जो होंगे जो बच्चे को नहीं पता होंगे. Surprise, excited, all those terms are there. Terrific. Yeah, So right. इसलिए And better है. parents get a lot of time and incidents also Yes. where they can label it. See, now you are feeling bored. See, now you are feeling sleepy. So they can Yes. always acknowledge the emotions and relate it with the situation. Yes, exactly. So labeling, after labeling, now it's the time to see okay अगर मैं अपने 4 negative emotions लेता हूँ कि मैं अगर sad feel कर रहा हूँ, which means I need to go into the rest area. So blue means, so if I'm feeling sad, if I'm feeling tired, if I'm feeling sick, if I'm feeling bored, now I have to go into a rest area. If I am feeling calm, if I'm ready to learn, okay, happy, I can be on go. Like I can do my activities, I can enjoy. Now, if I'm feeling frustrated, upset, hyper, silly, I need to slow down.
And if I'm feeling sad, mad, I want to scream, I need to yell, I need to stop that activity. So if I first, we have to figure out with the child कि मैं कौन से zone में हूँ, which zone am I in. So ये चीज, same चीज parent भी करेगा और बच्चा भी करेगा. And then use tool to get into the green zone. Ultimately है कि मैं green zone में आना है. सो अगर मुझे येलो जोन में हूँ तो मैं ग्रीन जोन में कैसे जा सकता हूँ. वी कैन पिक अप द एक्टिविटीज. क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या मैं कैन आई टॉक टू एन एडल्ट, ओके, कैन आई गो टू माय फेवरेट काम प्लेस और माय स्टोरी कॉर्नर, कैन आई डू सम गुड स्ट्रेचेस और कैन आई गो फॉर अ वॉक. सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जो पेरेंट बताएंगे. बिकॉज सी द प्रॉब्लम इज, वो अगर फीलिंग समझ भी गया कि ओहो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, फील लाइक स्क्रीमिंग, बट नाउ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या करूं. ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई वांट टू येल, बट आई डोंट हैव द टूल. सो दिस टूल, ये कौन किसकी जॉब है? द टू गिविंग द टूल इज द जॉब ऑफ द पेरेंट, कि वो बताएगा कि अच्छा हम ये चीजें कर सकते हैं. And like we said that specifically when we are talking about autism spectrum disorder, these visual cues are helping the child, because these kids are more like, if we say in general, visual learners. So they learn by visually, like seeing different things. And जब हम orally एक बताना और जब visually दिखाना, उसमें बहुत फर्क होता है. And it will help them to register the information more. And already हम ये सब एक play way में कर रहे हैं. So automatically play is the best form of learning for kids. So वो चीज better learn कर पाएंगे. Next is like mindfulness and relaxation activities. So there are research which says that if the child is practicing mindfulness, he is better able to control. Mindfulness basically means that I know what is happening around me, what is happening in my surrounding, how I am feeling at present, what I am seeing at present, what are my thoughts, rather than just सोचना कि अच्छा मेरे कल एग्जाम कैसे होगा, या मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है. सो व्हाट आर यू फीलिंग एट प्रेजेंट. सो व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर ओन सराउंडिंग, योर ओन सेल्फ, आप बेटर इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे. एंड ऑटोमेटिकली इट रिलैक्सेस योर बॉडी. सो जो हमारा फिजियोलॉजिकली, जो हमारा ब्रेन अराउज है, फिजियोलॉजिकली जो हमारी बॉडी बहुत अराउज्ड है, उसको भी रिलैक्स करने में हेल्प करती है. सो सम टेंस एंड रिलीज इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी. जो आप फीट से स्टार्ट करते हो, उनको स्क्वीज करना, रिलीज करना, टाइटन करना, उसको रिलीज करना, फिर धीरे धीरे आप लार्ज मसल्स को, लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आप जाओगे. एंड धीरे धीरे यू कैन आस्क द चाइल्ड ऑल्सो टू डीप ब्रीथ ऑल्सो. एक और एक्टिविटी है जिसमें आप बोलते हो ठीक है, फिगर आउट 3 थिंग्स दैट यू कैन सी, figure out 3 things you can smell, figure out 3 things you hear, figure out 3 things you can feel, and breathing in and breathing out. So again, these are the form of various relaxation activities, where mindfulness activity which can help making your child calm. Like this is another activity where they say go on a safari. So now आप जा रहे हो बच्चे के साथ पार्क में, आप बोलते हो कि ठीक है, जो वहां पे छोटा सा रॉक है या फ्लावर है, उसको ले पकड़ो, देखो कैसा लग रहा है, नोटिस द बग अराउंड, नोटिस द चर्पिंग ऑफ द बर्ड, नील डाउन, टच द सैंड और द मड या ग्रास जो भी है. एंड जब आप वॉक कर रहे हो बच्चे के साथ, यू आर पेइंग क्लोज अटेंशन टू द सराउंडिंग. ओके, सो मेक श्योर यू वॉक इन साइलेंस, बिकॉज आपको छोटी छोटी डिटेल्स नोट करनी है. साइलेंस वैसे करंट सिचुएशन में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना हमारे आसपास शोर शराबा रहता है. बट या एटलीस्ट दिस काम, बेसिकली वी आर ट्रेनिंग द चाइल्ड टू फील दैट कामनेस, बिकॉज कंटिन्यूअसली एक तो हमारी जो लाइफ है वो 24 घंटे ऑन गो है, उसी तरह से बच्चे की भी लाइफ वही वो देख रहा है, वही वो लर्न कर रहा है. सो वी ऑल्सो नीड दैट शट डाउन टाइम. नाउ we don't need any stimulation, we need to calm ourselves, we need to live in a present moment, जिसमें हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सके. So if the parent is using this quiet time daily, I think उसका चेंज आपको काफी लंबे समय तक दिखाई देगा. So these are not activity कि चलो आज हम mindfulness करेंगे. This is not the way you can see the result. Definitely आपको उसके schedule में वो क्वाइट टाइम लेके आना पड़ेगा.
So like quiet time, we have story time as well. And this कि instead आप उनको वो laptops या mobile phone देके उनको over stimulate करे brain को, rather better you can have a reading corner at in your home जहाँ पे there are different stories. And I think this website also, where which is available on the screen also, you can see there are books जो specifically emotional control पे बनी है. So instead of teaching and preaching, you can use these stories as an example. And अगर हम autism के context में बोले तो yes, we do social stories, we use those social stories with our kids. One thing I want to, I will carry on first. No, please. I was saying, like whenever the parents are using any book, so they should not pressurize the child that what color it is, what the child is doing, what is written here, which alphabet is this, because then they lose interest and they will never ever sit down and they will do any story time with you. So it's better that they can start describing the pictures. They can just tell them to turn the page, just for the help, if they want them to associate in doing something. Else they can just start with the description. And if the child can read and he's very fluent in reading, then so you can expect. But if the child cannot read properly and then putting expectation is not good in initial at least 5 to 6 sessions. Exactly, because यहाँ पे again then the parent need to reflect back कि what was the goal. गोल उसको रीडिंग कराना है या रीडिंग पे फ्लुएंट कराना है या उसका हम सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन स्किल वो कर रहे हैं. सो फोकस ऑन द गोल एंड देन प्लान इट आउट. So and usually it also research also says that story time अगर हम bed time पे करेंगे तो भी बहुत helpful होता है, because bed time is usually a soothing time. And also whatever the kind of activities they are doing before they're sleeping, it will help वो memory में consolidate भी होगा, क्योंकि एक वो इट्स लाइक अ फिजियोलॉजिक अगेन एक यहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें अगर आप वो स्टोरी सुनाओगे स्पेसिफिकली मोर सूदिंग स्टोरीज, so उससे automatically yes, kid is learning the skill of emotional regulation. At the same time it is also making him calm and giving him a, okay ठीक है we it's like a sleeping process कि हाँ ठीक है हम आ गए हैं बेड पे, हम स्टोरी सुनेंगे. It produce very calm and soothing effect on overall body पे भी brain पे भी, and it helps in memory consolidation as well. So these things, it is again जितना हम रूटीन में लेकर आएंगे उतना बेटर रहेगा. If we do start doing कि आज ही करना है कल रिजल्ट मिल जाएगा, so that won't be possible here. So some other strategies हैं जो कि parents can, because when the child is very hyperactive हो गया है या बहुत impulsively act कर रहा है, he is crying, yelling, so at that time parent also, because he definitely there is no book जिसके वो थ्रू उसको पता हो कि अच्छा मुझे अब ऐसे एक्ट करना है, बट द मूल मंत्रा इज टू स्टे काम. सो हमें वो कामनेस लेके आना पड़ेगा एंड कामनेस को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा. लाइक दे कैन से आई कैन सी समथिंग इज बगिंग यू, समथिंग इज बॉदरिंग यू, कैन वी टॉक अबाउट इट, और कैन वी टॉक अबाउट इट while we are watching our favorite movie or while we are having some snack, और कैन बी आस्क कि यू सीम्स टू बी अपसेट, कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ स्कूल में कुछ हुआ है या उदास हो या कुछ चीज परेशान कर रही है, क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में, या कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपको अच्छा फील हो. सो वो कामिंग फ्रेजेस भी अगर हम बच्चे को वो बोलें, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज ब्रेन एंड द बॉडी. ओके, एंड इंस्टेड कि ये बात पूछना कि अच्छा वो बता नहीं रहा है स्कूल में क्या हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा. ऑल दीज phrases are like making the child irritated. Even if we have try on ourselves कि अगर हमारा we had a bad day at office or at work and we came back home and then suddenly कोई questions पे questions हमसे पूछ रहा है, we automatically get agitated because already इतना stimulation से हम आए हैं, already we had a bad day at work, we also need some calm time for ourselves. So instead question पे question करना, we can say that if we can sense कि yes कुछ ना कुछ हुआ है, गड़बड़ है कहीं ना कहीं, so let's give some space to the child, and instead of simply questioning and nagging him or her, we can ask certain calming phrases
ताकि उसको भी थोड़ा टाइम मिले, he also feels that yes, somebody is there to understand me. Another important thing that is very very important, and it's not like sometimes like there are certain behaviors which parents feel अरे ये तो मैंने सिखाया नहीं है, हम तो इस तरह से करते नहीं है, but unconsciously कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है वो चीज लर्न कर रहा है by imitating. सो अगर पेरेंट भी के पास ये स्किल होगी कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, करेक्ट रिएक्शन दे पाए, सो बच्चा भी वो चीज देखेगा और वो चीजें अपनाएगा. अगर पेरेंट भी बहुत रिएक्टिव है कि हर बात पे जब उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, ही इज आल्सो स्क्रीमिंग, ही इज येलिंग ऑन हिज अदर फैमिली मेंबर्स, तो चाइल्ड आल्सो फील्स कि ठीक है, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो उसके बाद आई हैव राइट टू yell at, if I am upset I have right to scream at my family members. So if the parent has that calmness and he has that problem solving ability, वो automatically बच्चा भी imbibe करेगा, because बच्चों के लिए parent is like a role model. एंड Right. वी ऑल नो कि इमिटेशन का, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर. सो इन ऑर्डर टू फर्स्ट कोच द चिल्ड्रन, पेरेंट्स फर्स्ट नीड टू काम देमसेल्फ डाउन. लाइक इट्स नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स आर लाइक रोबोट एंड उनके भी इमोशंस में डिफिकल्टी या नहीं. दे कैन ऑल, दे आर लाइफ स्ट्रेसेस एंड they also feel upset, frustrated, but now how they handle it, that is more important. True. So if they are able to regulate those emotions, automatically वो चीज unconsciously या बच्चे observation के through वो learn कर पाते हैं कि yes, I can also deal with the situation in a similar manner. And the last and important thing is, I think we had our last session on emotion coaching, where we learned different style of emotion coaching parents. So if a parent is able to label the emotion for the child, provide them the right vocabulary, is calm with the child, able to empathize with him or her, acknowledge his or her emotion, communicate that empathy with him, automatically the child will also learn to regulate the emotion. The only thing is, parents' job is to be a emotion coach. So if we are the emotion coach for our child, if we act as an emotion coach, automatically things will move in our favor only, and बच्चे भी वो चीज imbibe कर पाएंगे. It's just that we need to regulate our emotions first and be an emotion coach for the children. So this is what I thought would be beneficial for the parents. Definitely. And yeah, thank you for Definitely, it's giving going this to be. opportunity. Yeah. Yeah, thank you, Dr. Kriti, for such a nice presentation on emotions. And it's such a very, crucial topic for parents to Exactly. understand. Because Exactly. what we see is externally what child is doing, his behaviors, and that something or the other they are engaging in. But they don't see it internally what is going on with the child. And it is Yes. very important to understand that what is the exact thing the child is doing. Is he not really ready to write anything, or is it something motor function wise he's not able to? So always it's always good to take more topics on emotions, I feel. True. So yeah, I think that is all. Yeah. Any questions? Any you would like to share your experience? Any which way so that we can learn? uh with emotions and things, like I told you, perspective wise, I feel difficulty, even though we do a lot of basic emotions training with kids, and I have a lot of toys related to emotions only. And kids, they understand also, they draw it also, they start, when we do sensory exploration, tactile. So with the shaving cream, we make emotions, and they register it and they label it also. But when I tell parents to implement the same, okay, because you get the opportunity to label it more. So if he's Yes. feeling sleepy, you have to say, see, your eyes are getting closed, you're feeling tired, are you sleepy? See, you're feeling sleepy. So that is how they have to acknowledge it and relate it with the situation. And some Yes. parents are doing it so beautifully,
Now one of my child has started going to his father and started massaging him so that he should feel good. Because he was able to see that my father is tired and he's not looking so good. So Yeah, he thought that if I'll give him massage, he might get happy. So imagine the kind of a perspective taking activities we were doing with him, and emotions and regulation, everything we were doing with him. Exactly. Yeah, and in DIR flow time, the first domain is self-regulation, Yes. because that is very important to build interact with the environment. Then the two-way purposeful communication will come. If the Exactly. child is not regulated, nothing will come. Yeah, that's the first building block. Otherwise, if he can't, if he's not sitting calmly, he's not able to control, how he would listen to you? Communication in established profile. So yeah, that self-regulation, self-control, emotional control is really very important. And if Right. parents, I hope parents will learn something, or at Yeah. least they'll try imbibing few things from Yeah, our session. and they have to be the first emotion coach. With Yes. therapists and people, they change with the time. But Yeah. parents, they should always understand that we are the first coach of our parent. And I know they are trying their level best for their kids, but I think with emotion perspective wise, they should do it more, I feel. And Exactly. because in many places you will see that awareness is not so much. So some people feel like my child is not able to express emotions. Why should I give it? I have heard Exactly. this statement. So Mm-hmm. why should I express any emotion when he is not able to understand? But they don't understand that the child is getting each and every word which they are saying. So our kids, Yes. they are getting everything. So everyone who is listening to this conversation, so please don't think that they will not understand your emotions. They do understand, Yes. and you guys can really help by showing your emotions so that they can get the real emotions too. Exactly. Like the towards the end of the slide, we saw that how observation learning or learning by imitation. Yeah, So it's really though maybe it not like in terms of overtly expression, you can't see that, but it is internally building up. So if right. parents are more expressive, if they are communicating with all these things with the child, definitely, maybe not immediately, for the long term, they could see some change. Yeah. Right, right. So, do you want to add anything else? No, that's all from my side. And I hope we will meet soon for our next series now. Yeah, Yeah. For the next topic, we'll see next week, right? yeah, sure. Okay, then. Okay, thank you for giving your time, Dr. Kriti. Thank you so I'll much. see Thank you. you. It was pleasure interacting with you. And I hope parents will see this, they will learn. And any queries, definitely you are there. I am there to help them out. Thank you so Yeah. much. Okay, bye